Okay, dear students of class 10th, you were doing community and conservation of forest yesterday, and the same topic is being continued today also. And today's topic is JFM, Joint Forest Management Program. Joint Forest Management Program, as the name suggests, that there is participation of local communities and also the participation of the government. So that's why it is known as Joint Forest Management Program. Because in this program, the local community, with the help of government, is doing the conservation of forests. So it is known as Joint Forest Management Program. So let us start from here. In India, Joint Forest Management Program furnishes a good example for involvement of local communities in the management and restoration of degraded forest. Degraded forest means the forest which was under depletion, which was under encroachment by the human activities, and the forest was not in a good condition, it was in a degraded state. So for the restoration of the degraded forest, Joint Forest Management Program is very, very helpful. The program has been in formal existence since 1988, when the state of Odisha passed the first resolution for Joint Forest Management Program. So, Odisha is the first state which started the Joint Forest Management Program. In which year? Tell me. 1988. In 1988, when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management, JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. So here is the help of forest department of the local government and also the local people, which form an institution to undertake the protection activities for the forest, which is in their locality or in nearby area. In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest products. देखो timber किसको कहते हैं? Timber is the woods, लॉग ऑफ द ट्रीज, है ना, LOG, लॉग कहते हैं ना, बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं स्टेम के, उसको लॉग्स कहते हैं. तो जब फॉरेस्ट से हम वुड को एक्सप्लाइट करते हैं, वुड को लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? वुड इज नोन एज टिम्बर. For big purposes like for furniture industry, for railway industry and various other activities, for house building purpose. तो बड़े बड़े कामों में जो अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसी को क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं. और फॉरेस्ट से जो टिम्बर लेने का काम होता है ना, उसको क्या कहते हैं? लंबरिंग कहते हैं. ये वर्ड कहीं पेंसिल से लिख लो, LUMPERING, लंबरिंग. Lumbering is the exploitation or cutting of timber from the forest, and it also includes its transportation. ठीक है ना? तो लंबरिंग करते हैं फॉरेस्ट से. तो ये जो लिख लिए, बताओ what is lumbering? Cutting and transportation of timber from forest is called lumbering. हाँ, तो लंबरिंग ना एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है. फॉरेस्ट में तो बहुत तरह के रिसोर्स हैं, लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है वो यही है, टिम्बर. जैसे टीक वुड, साल वुड, शीशम, बहुत सारे अच्छे वैरायटी के वुड होते हैं, खास करके मानसून फॉरेस्ट में. तो उन सब को एक्सप्लॉइट करना, यूज करना, तो ये गवर्नमेंट के देखरेख में होता है. लंबरिंग कोई अपने से नहीं कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसमें फॉरेस्ट का बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज को भी दिया जाता है. तो क्या दिया जाता है? इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स. नॉन टिम्बर मतलब टिम्बर तो नहीं दिया जाता है, क्या दिया जाता है? फॉरेस्ट से और भी बहुत सारी चीजें मिलती है ना, जैसे फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स या बार्क, इस तरह के बहुत सारे रूट्स, बहुत सारे आइटम होते हैं जो फॉरेस्ट से मिलते हैं. तो उन सब चीजों में
लोकल कम्युनिटी को भी बेनिफिट दिया जाता है नॉन टिम्बर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस लाइन को एक बार और देखो, इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर समझ गए कि जो लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्शन का काम कर रही है उनको फॉरेस्ट से बेनिफिट भी मिलता है, जैसे फ्रूट्स, नट्स, लीव्स, ये सब वो ले सकते हैं, फ्यूल, वुड, ये सब कलेक्शन कर सकते हैं। and share in the timber harvested by successful protection। अब ये लास्ट में क्या लिखा है देखो, and share in the timber harvested by successful protection। इसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट की तरफ से टिम्बर की हार्वेस्टिंग होने लगती है ना, तब उस टिम्बर का बेनिफिट लोकल कम्युनिटी को भी कुछ मिलता है। लेकिन ऐसे कोई लंबरिंग नहीं कर सकता है फॉरेस्ट में, ठीक है ना। जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लंबरिंग होती है गवर्नमेंट के देखरेख में, तब उस टिम्बर का बेनिफिट लोकल पीपल को भी मिलता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पर देखें तो टिम्बर नहीं यूज कर सकते हैं लोग, अपने से नहीं ले सकते हैं, कटिंग नहीं कर सकते हैं ट्री की, लेकिन बाकी जो इंटरमीडियरी बेनिफिट्स है ना वो ले सकते हैं। मतलब फ्रूट्स, नट्स, ये सब फॉरेस्ट से वो ले सकते हैं जो कम्युनिटी पीपल है। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। ठीक है ना, ये सब देखने से क्या पता चल रहा है कि लोकल कम्युनिटी का ना एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी रिसोर्स के कंजर्वेशन में, है ना। फॉरेस्ट ही नहीं, और भी सारे रिसोर्सेस हैं। मान लो ये वाटर रिसोर्स जो हम लोग फ्रेश वाटर यूज करते हैं, तो उसका भी अगर कंजर्वेशन करने की बात आएगी तो सबसे बड़ा रोल किसका होगा? कम्युनिटी का होगा, पीपल का होगा, है कि नहीं। पीपल जब तक एक्टिव रोल नहीं प्ले करेंगे तो हम किसी भी रिसोर्स का कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. But there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making, है ना। अभी तक हम लोगों ने फॉरेस्ट के लिए कुछ डेवलपमेंट तो जरूर कर लिया है कि पहले कितना था फॉरेस्ट का लैंड यूज, कितना था पहले बताओ? ओनली 33%। हाँ नहीं, पहले कितना था लैंड यूज में पढ़े थे ना, बताओ। व्हाट वाज द फॉरेस्ट लैंड यूज इन 60-61? 18.11%। हाँ बिल्कुल, 18.11% था, और वो बढ़ के कितना हो गया है बताओ? 23.3%। हाँ 23.3% हो गया है। तो 23.3% हुआ तो इंक्रीज तो हो रहा है, एक तो पॉजिटिव बात है ना कि फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज का रेट कम है। कहाँ तक पहुंचना है? 33% तक पहुंचना है। हाँ, क्योंकि 33% एक साइंटिफिक नॉर्म है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, है ना। हमारा एनवायरनमेंट तभी बहुत अच्छा होगा जबकि हमारे रीजन में 33% एरिया फॉरेस्ट हो, ठीक है ना। तो पूरे कंट्री लेवल पे देखें हम तो इंडिया का 33.3% लैंड फॉरेस्ट होना चाहिए। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, और इसमें कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा होगा कि कम्युनिटी शुड बी एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग, है ना। फॉरेस्ट को कैसे बढ़ाना है, फॉरेस्ट एरिया को, उसमें कितने वैरायटी ऑफ स्पीसीज होने चाहिए, है ना। मल्टीपल वैरायटीज होने चाहिए फॉरेस्ट के अंदर। मतलब मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए। मोनोकल्चर मतलब किसी एक ही वैरायटी का ट्री ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट का मतलब ही होता है कि जितने तरह के स्पीसीज उस क्लाइमेट के अंदर ग्रो कर सकते हैं वो सब होने चाहिए, ठीक है ना। एक्सेप्ट only those economic or developmental activities that are people centric, environmental friendly and economically rewarding। हम लोगों को कैसे काम में इन्वॉल्व होना चाहिए? लोगों को ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए जो क्या हो? पीपल सेंट्रिक हो,
मतलब लोगों का बेनिफिट जिसमें हो वैसा काम करना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए वो काम, है ना, और क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली रिवार्डिंग भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइवलीहुड भी चलता है इन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पर। एनवायरमेंट फ्रेंडली तो बिल्कुल ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक एटमॉस्फेयर में सॉइल, वाटर, एयर ये सब परफेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है ना, सर्वाइवल लोगों का डेंजर में आ जाएगा। जहां सॉइल खराब होती है बस क्या होता है, फूड सिक्योरिटी डेंजर में आ जाता है। तो ऐसे ही कहने का मतलब कि हर एक रिसोर्स का इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि डेवलपमेंटल एक्टिविटी कैसा होना चाहिए, इसको एक लाइन में लिखो तो। What type of developmental activities should take place? एक क्वेश्चन लिखो तो लास्ट लाइन से, What type of developmental activities should take place? आंसर लिखो। फिर से एक बार बोलिएगा मैम। हाँ, What type of developmental activities should take place? ये आंसर लिखो। मेंटल। हाँ, उत्कर्ष रिपीट कर दो तो। What type of development activities should take place? What type of developmental activities should take place? अर्पणा एक बार रीड करो तो क्वेश्चन को। अर्पणा, What type of development should be tackled? no. Correct your sentence. फिर से सुनो ध्यान से और लिखो। Ma'am, ma'am, what type of developmental activities should take place? हाँ, It should take place. सेंटेंस तो करेक्ट सेंटेंस बोला करो और लिखा करो, ठीक है। तब आंसर लिखो। Yes, ma'am. Our developmental activities should be people centric, environment friendly, and economically rewarding. Aditya Aryaman, read the answer. Ma'am, can I? Our development activities should be public centric, environment friendly, and economically rewarding. हाँ, इकोनॉमिकली रिवार्डिंग का मतलब समझ गए ना, कि हमें उसका बेनिफिट Yes, फायदा मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें अपने लाइवलीहुड भी चलाना है। तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का डिमांड डिजायर पूरा हो सके, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो अब एक और क्वेश्चन लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। Short note on Joint Forest Management Program, within bracket JFM. Write a short note on Forest Management Program, brackets JFM.
आंसर लिखो. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज Joint Forest Management Program involves the local communities. Joint Forest Management Program involves the local community and the government organization for the management and restoration of degraded forest. For the management and restoration of degraded forest. The first JFM was started by Odisha government. The first JFM was started by the Odisha government with the help of local villagers with the help of local village institutions लिखो ज़्यादा better होगा with the local village institutions in 1988. In 1988. सेकंड पॉइंट फिर से मैम बोलिए. Arsalan, are you present? Arsalan, repeat the answer. Komal? Ma'am, Huh. can I Yes. join forest management program is involves the local communities and the government organization for the management and restoration of the degraded forest. The first JFM was started by the Odisha government with the help of local villagers in 1988. मैम आखिरी में विलेज इंस्टीट्यूशंस कराई थी आप इन 1988. हाँ ठीक है और तुम अपने से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हो सेंटेंस को है ना. दीक्षा लिख रही हो ना. कोमल आज पता नहीं चल रहा है कि सब बच्चे लिख रहे हो कि नहीं. कहे कि खाली अमृत गौतम ही तो बोल रहा है कोई बोल ही नहीं रहा है. मैम लिख रहे हैं. लिख रहे हो ना तो लिखना काम हो गया. बोलो. Yes, ma'am. यस मैम. पलक. हाँ इसमें ऐड करो अब आगे फिर रीडिंग करने के लिए तैयार रहना. अब लिखो. In return, the members of these communities are entitled to get non-timber benefits of the forest. To get non-timber benefits of the forest. And also get some benefit
of the timber harvested by the government बस इतना ही लिखो. मान्या, have you written? Yes, ma'am. हाँ तो पढ़ो, पूरा आंसर पढ़ो तो. In return, member of these communities to get non-timber benefits of the forest and also get some benefit of the timber harvested by the government. ठीक है ना. गवर्नमेंट जब प्लान्ड मैनर में टिम्बर हार्वेस्ट करती है तो उसका भी एक शेयर, उस बेनिफिट का भी एक शेयर इन लोगों को मिलता है, लोकल कम्युनिटी को जो फॉरेस्ट की देखरेख करते हैं. तो ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट है और उड़ीसा ऐसे एफर्ट में बहुत आगे रहता है क्यों, जिसमें कि लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करती है. अब जल्दी से इस लेसन में आ जाओ तो लास्ट क्वेश्चन आंसर्स में. See the quotation of Mahatma Buddha. Which year? 487 BC, before Christ. The tree is a peculiar organism of unlimited kindness. है ना. इसमें गौतम बुद्ध ने क्या बताया है? ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे लाइफ में, पूरे लाइफ में ट्रीज कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो ट्रीज में क्या है? अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस. है ना, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है ट्री. एंड एक्सटेंड्स जेनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी. extends generously the products of its life activity. और अपने products human beings को देता रहता है पूरे life. It affords protection to all beings, offering shade even to the axemen who destroy it. Trees जो है ना वो हमेशा क्या देते हैं? दूसरे के लिए कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं. शेड भी देते हैं. इवन वैसे लोगों को भी जो कि एक्समैन है, जो काटने जा रहे हैं पेड़ को, डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, उसको भी पेड़ पहले छाया ही देता है. तो इसमें ट्री का इंपॉर्टेंस बताया गया है. तो ये थॉट जो है गौतम बुद्ध का बोला हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये हमारे इकोसिस्टम में ट्रीज के इंपॉर्टेंस को बताता है. ठीक है, एक बार इसकी रीडिंग कर दो कोई एक बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं. The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the product of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even the axeman who destroy it. समझ गए? ये इतना एक पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म है ट्री, जो अनलिमिटेड काइंडनेस और सेवा की भावना से भरा हुआ है ना. और हर लोगों को कुछ ना कुछ देता ही है, एकदम उदारता से, जेनरसली बहुत कुछ देता है ट्री. फ्रूट्स, नट्स, लीव्स, शेड, टिम्बर, बहुत कुछ देता है ना. और कुछ डिमांड नहीं करता है, वो अपने सस्टेनेंस के लिए वो कोई डिमांड भी नहीं करता है. ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन हम लोगों को ट्री का करना चाहिए. एक्समैन मतलब जो काटने वाले होते हैं, पेड़ काटने वाले, उसको भी वो क्या देता है? छाया ही देता है, शेड ही देता है. अच्छा चिल्ड्रन, लिसन ऑल ऑफ यू. ऑन संडे you have your social studies test, right? Coming Sunday before the summer vacation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The portion of the test is lesson 1 from geography and lesson 1 from economics. Right? So tomorrow, Yes, ma'am. Tomorrow we will do some revision work from lesson 1. Ma'am. Geography, right? And then economics also. We have to complete. Ma'am. बोलो. मैम समर वेकेशन के बाद पीरियोडिक टेस्ट मैम होगा. हाँ हाँ.
ऐसा ही है। तो फिर मैम उसमें हाँ, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है। पढ़ाई है, वही ना आएगा। हाँ, वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। ठीक ना, ठीक ना। मैम समर वेकेशन का नोटिस नहीं मिला है अभी। तुम लोग को नहीं मिला है? नहीं होगा तो डीएवी मेरे तो पास मैम है। हाँ, ऑफिशियल में है। कहाँ पे आया था? हाँ, डीएवी अरे मेरे एक मामा है, तो वो रहते हैं डीएवी टीचर है, तो हम भेज देंगे। अच्छा ठीक है, हम भी भेज देंगे तुम लोगों को। चलो ये देखो, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना जो डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन जो नहीं है वो बताओ। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये तो है ना, इससे हो रहा है ग्रेजिंग एंड फ्यूल हाँ, कलेक्शन। ये जो सी में। हाँ, सी में टिक करो। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन से फॉरेस्ट को ज्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई ट्री नहीं काटता है। ग्रेजिंग एनिमल करते हैं और फ्यूल वुड कलेक्शन में सिर्फ ब्रांचेस लेते हैं, ट्री के सूखे हुए ब्रांचेस ही लेते हैं, पूरा पेड़ कोई नहीं काटता। इसलिए ये सबसे इस तरह का रीजन है जो कि फॉरेस्ट के लिए इतना हानिकारक नहीं है। बाकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन सभी ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं फॉरेस्ट को, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ये सब। दूसरा देखो, which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? इसमें कम्युनिटी नहीं होते हैं। Demarcation of wildlife मैम sanctuary. डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हाँ, सेंचुरी। यही सही रहेगा, ये तो गवर्नमेंट करती है, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चिपको मूवमेंट भी कम्युनिटी का है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी कम्युनिटी है, बीज बचाव में भी कम्युनिटी है, ठीक है। अब इसको कर लो, मैच ए कॉलम ए विथ बी, ये कर लो, है ना। इधर एनिमल प्लांट्स का नाम लिखे हैं, इधर कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे ब्लैक बग है तो कौन सा हुआ बताओ? डेजर्ट में। वो endangered हुआ, तो ब्लैक बग को endangered से कनेक्ट कर लो। एलिफेंट वेनेरेबल। राइट। फिर अंडमान वाइल्ड पिग, Endemic. एंडेमिक। लास्ट वाला एंडेमिक। और हिमालयन ब्राउन बेयर, ये तो रेयर रिया। और पिंक हेड डक एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट है ये, पिंक हेड डक इज एक्सटिंक्ट, ठीक है। और ये तो कर ही लोगे मैच, ये वाला मैच। यस मैम। रिजर्व फॉरेस्ट, B ma'am, forests are regarded as the most valuable as part of the conserved forest wildlife वेरी resources. गुड, वेरी गुड। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, forest land are Last protected. one, forest lands are protected from lands any are further protected. एनी depletion. फर्दर डिप्लीशन, मतलब आगे उसमें कोई डिप्लीशन नहीं हो, क्योंकि पहले बहुत हो चुका है, अब इसी को और सुधारना है, इसको कंजर्व करना है। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, Other forests and Other forests and wastelands. हाँ, Government and private government and entities. private ठीक है। ये तो फर्स्ट पेज में ही था, लेसन के फर्स्ट पेज में, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये तुम लोग कर लिए हो। Yes ma'am, कर लिया। अफेक्टेड फ्लोरा एंड फाउना एक्सप्लेन। इसमें हमें एक क्वेश्चन तुम लोगों को लिखा है कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स व्हिच लीड टू डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, वही है, वही आंसर ये भी है। Agriculture, multi-purpose. हाँ, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, Shifting agriculture, हाँ, mining, हाँ, river हाँ, valley projects, हाँ, रिवर वैली deforestation, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी, मोर large scale development projects. एंड मोर एक्विजिशन ऑफ लैंड Exploitation. रेसिडेंशियल पर्पस, ये सब, ठीक है। और ये आंसर तो कल लिख लिए थे, कल के क्लास में, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, Yes ma'am. ठीक है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कर लो तुम होमवर्क में, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
अभी थोड़ा सा एक पोर्शन का रिवीजन कर लो, बस 3 मिनट, 2 ही मिनट बचा है, क्योंकि 1 मिनट पहले स्टार्ट किए हैं तो 1 मिनट पहले बंद हो जाता है। हाँ, यहाँ से देखो, एक एक बच्चे करके अपना आंसर बोलना। तो व्हाट आर नॉर्मल स्पीसीज? A normal species to the level of the population have a normal level. रिकॉर्डिंग बंद करेंगे।